dear students. Welcome to the class today. Children, we are carrying on with the revision of this chapter, Economic Development in Economics, Chapter 1. Yesterday we have discussed 2 points. As you know, we are discussing the questions and the topics as per the board requirement. I am giving you, because the last 10 years question that I have gone through, national development on development questions were there, but what the questions were pertaining to, what the questions were limited to, there we have seen that the questions were limited to basically the explanations and the terminologies that are there. In that, we have to understand that development is a concept which has got different notions for individual as well as for the nation. So today what we are talking about national development. National development में एक question that has been asked 2018 में, my dear children, it was asked that different persons could have different as well as conflicting notions of country's development. Conflicting notions of country's development. Now, students, different persons could have different as well as conflicting notions of country's development. डेवलपमेंट मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप मत लिखना बोर्ड एग्जामिनेशंस में. यस, आई ऑलवेज reiterate because children, it doesn't give a good appearance, it gives a very bad impression. Got it? Now how will you deal with this question? क्या लिखेंगे इसमें आप? What are you writing here is for 3 marks. Got it? तो आप सबसे पहले ये देख लो कि आप इसमें क्या लिखोगे. You are writing, children, what you are writing here is about an example जो आपकी बुक में दिया हुआ है. आप वो भी एग्जाम्पल लिख सकते हो. Other example also you can write, but majorly what you are writing is कि national development means thinking about certain questions where we are thinking that everybody is treated equally, fair and just path for all. Development would lead to a fair and a just path for all. Okay, so development would lead to a fair and just path. अब children, what happens is कि economics में major theories that are there, major issues that are there, that are discussed with the help of examples. आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही ये एक्सप्लेन किया गया है, तो इसमें आप एग्जाम्पल देना ही पड़ेगा. ठीक है कि डिफरेंट पर्सन्स आर देयर, they have got different developmental goals. वो तो हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ लिया. We have talked about it in the first topic. That now here you are talking about the incident at Ivory Coast in Africa. क्या हुआ इस यहाँ पे ना, lot of toxic material was dumped on the seaside and it got mixed up with the drinking water and lot of people had health issues. किसी कंपनी में लाके वहाँ पे बहुत सारा जहरीला पदार्थ छोड़ दिया. तो जब जहरीला पदार्थ छोड़ दिया उसके वजह से क्या हुआ,
that it had lot of impact on the health of the people. The health issues that had developed were immense. Got it? एक तो आप इसमें ये बताओगे that health issues are also to be considered. क्योंकि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि different persons could have different notions, conflicting notions. The company that was manufacturing some material, जिसका waste material was some toxic material, उसके वजह से क्या हुआ है that कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग वॉज गुड, नेशन डेवलपमेंट. अब जितना भी वॉट एवर मनी इज कमिंग, रेवेन्यू, प्रॉपर रेवेन्यू वुड बी गिवन बाय द कंपनी. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट इज द इशू? द इशू इज दैट कि विद द कंपनी विच हैज मैन्युफैक्चर्ड, जिसने कि ये मटीरियल डंप किया है, the company which has dumped the material, the toxic material near the drinking waters, उन्होंने इस तरह की चीज क्यों की? कॉमन आदमी के बारे में नहीं सोचा ना. तो यहाँ पे क्या हुआ? वन भाई कंपनी हैज अ डेवलपमेंटल इशू, डेवलपमेंट किया इन्होंने, लेकिन अब यहाँ नोशन तो कन्फ्लिक्टिंग हो गया. ठीक है, द इशू दैट इज देयर इज कन्फ्लिक्टिंग. यही चीज यहां पे आपको हाईलाइट करनी है. प्लीज मेंशन अबाउट इट. नाउ हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स? हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स. इसमें क्या है बेटे? यू हैव टू कंपेयर. तो अगेन द एग्जाम्पल दैट इज गिवन देयर इन द बुक, आप चाहो तो उसको दे सकते हो, लेकिन कि हेल्दीएस्ट स्टूडेंट इज नॉट स्टूडियस, स्टूडियस स्टूडेंट इज नॉट हेल्दी, मतलब इस तरह का एग्जाम्पल दिया गया है. आप यू कैन गिव इट, लेकिन कंपैरिजन में बच्चों का एग्जाम्पल, हम यहाँ कंट्रीज का कंपैरिजन कर रहे हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वी हैव टू कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. एक खाली एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स. इट कुड बी डिफरेंट. द कोऑपरेशन, द क्रिएटिविटी, मतलब अलग अलग कंट्रीज का डेवलपमेंटल क्राइटेरियाज आर डिफरेंट. गॉट इट? सो सबसे पहला जो पहला फर्स्ट 3 मार्क्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो इस क्वेश्चन को, यू आर प्रिपेयरिंग दिस क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स. इनकम इज द मेजर क्राइटेरिया. सबसे पहले तो आप इनकम के बारे में बात करोगे. ओके, द इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स for comparing countries. First thing, when you are talking about the income criteria, talk about it. इसके बाद income means all things that human beings need. सब चीजें जो human being को चाहिए, क्या everything is available? हाँ, ग्रेटर इनकम इज कंसिडर टू बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट गोल. लेकिन व्हाट इज द इनकम ऑफ द कंट्री? इनकम के बेसिस पे. सो वी आर कंपेयरिंग द कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज इनकम, which is also per capita income. Got it? It is also the per capita income. एक ही है एक्सप्लेनेशन इसका, लेकिन देख लीजिए आप. टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन. सो टोटल इनकम
डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। ये जब आप करेंगे तो आपको पर कैपिटा इनकम आ जाएगा एंड दिस इज द मेजर क्राइटेरिया ऑफ मेजरमेंट। गॉट इट? So students, we have been discussing about this. I had come to the book. I wanted to discuss it from the book because what has happened is there are certain datas that are mentioned in the book and I wanted to refer the book regarding that. That's why board pe se I have come to the book where I'll be asking you to complete those datas and how those datas would be completed. This I would be telling you, this I would be making you mark in the book. सबसे पहली चीज़, the one thing that we have discussed was about national development. इसमें development के बारे में they have not mentioned much. Got it? Development के बारे में major issues are not here. Just see the statement that is mentioned here is that development means thinking about these questions. मतलब questions के ऊपर ही छोड़ दिया है. It has been left how to think about these questions and how to frame your answers. Got it? आप चीज़ को तो पहले आप एक बार लोगे questions, go through it. इसके बाद please understand, look at the picture in the right, what should be developmental goals for such an area and then the report that is given here. आप ये देख लो, अभी डेवलपमेंटल गोल्स वो पिक्चर को देख के आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, बट यू कैनॉट ड्रॉ दिस पिक्चर इन द एग्जामिनेशन. Are you understanding? So you do not need to see this picture. What you need to mention here is the example. पूरा मत दो, पूरा मत दो. Don't give the complete example. 3 नंबर का क्वेश्चन है, कितना लिखोगे 3 नंबर में? So what you need to give is a multinational company dealing in petroleum and metals had contracted a local company of Ivory Coast to dispose the waste from its ship. Okay, कि टॉक्सिक वेस्ट को उन्होंने डंप कर दिया ऑन नियर द सी साइड. 500 टन्स बहुत होता है टॉक्सिक वेस्ट. क्या हुआ कि फ्यूम्स इतने टॉक्सिक थे, जहरीला. हाँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड, मेनी ऑफ यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ टॉक्सिक. मैं बार बार टॉक्सिक तो कह रहे हैं, लेकिन टॉक्सिक का मीनिंग नहीं बताया है. टॉक्सिक इज जहरीला. आफ्टर months 7 persons were dead because of this toxic material. 20 people were there in hospital and 26,000 treated for symptoms of poisoning. अब the company which had manufactured certain goods has thought about development, has thought about making money. Money बनाने के चक्कर में a large population is affected. Can this be called development? Please understand. तो आपको इस चीज़ को justify करना है. Just look at the question. What should be the developmental goal for this country? अब इस गवर्नमेंट किस चीज़ को माना जाए? We are talking about development. We are talking about Africa. लेकिन look at the condition that has happened in Africa कि if one company is trying to manufacture proper goods, तो उसका नतीजा आप देखिए कि उन्होंने क्या किया. What they have done to the poor people. So यहाँ पे one answer that comes to the mind, one thing that could be kept in the mind कि while thinking of development about a group, other groups should be also taken care of. तभी national development can be practiced. दूसरा चीज़ जो हमने किया, what I wanted to show you is the like all round progress of children in the class. How shall we do it? यहाँ बच्चों का एग्जाम्पल दिया हुआ है. तो बच्चों का एग्जाम्पल देख के आपको समझाया गया है in the video also, just now that we were discussing on the board, that we cannot use this example in the answer. आंसर में ये एग्जाम्पल यूज़ कर पाना मुश्किल है.
तो क्या हम आंसर छोड़ देंगे? नो माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर नॉट लीविंग द आंसर, वी आर राइटिंग द आंसर। लेकिन क्या है कि वी हैव टू कंपेयर मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कंपेयर करके उसके बाद ही हमको डेवलपमेंट के बारे में फाइनलाइज, वी कैन गिव सम फाइनल सॉल्यूशन टू दिस डेवलपमेंटल इशू। होगा व्हाट आर द अदर क्राइटेरियाज? ठीक है, कंपैरिजन में क्या है? They have compared again, they have given the example of school. The school example that was given here कि friendly है, मतलब in the child we have to see many qualities. Country has been compared with the child. Compared नहीं, इसको कहते हैं personification. एक बच्चे के रूप में कंट्री को देखा गया है कि खाली इनकम 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 पे ही डेवलपमेंट गोल्स कैन नॉट बी बेस्ड. There should be other criteria, there should be other points which should be considered while finalizing the developmental goals and the development criteria. Got it? इसके बाद we have to talk about income. One of the most important attributes, one of the most important conditions for comparing countries is income. लेकिन आर देयर अदर क्राइटेरियाज ऑल्सो, को तो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे. लेकिन इनकम बेसिस पे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपैरिजन, इनकम ऑफ द कंट्री इज इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री. तो इससे क्या होता है, सारे रेसिडेंट जितने भी लोग कंट्री में रह रहे हैं, देयर टोटल इनकम विल बी कैलकुलेटेड इन द फाइनल इनकम ऑफ द कंट्री. गॉट इट? वी नीड टू मेंशन अबाउट इट. लेकिन इनकम हम नहीं देख पाते हैं. मेनी अ टाइम्स टोटल इनकम इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एंड मेनी कंट्रीज आर अनेबल टू गिव द डेटाज रिलेटेड टू द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री. अब उन कंट्रीज का कंपैरिजन कैसे होगा? सो वी कंपेयर एवरेज इनकम, वी कंपेयर द पर कैपिटा. एवरेज इनकम इज इक्वल टू पर कैपिटा इनकम. टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन. जितने भी लोग हैं, वॉट एवर इज द इनकम ऑफ द कंट्री, उसको टोटल पॉपुलेशन के साथ डिवाइड कर देना है. एवरेज इनकम इस तरह से जो आएगा, दैट इज द पर कैपिटा इनकम. गॉट इट? दिस इज वॉट इज द पर कैपिटा इनकम. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. नाउ on a central level, central नहीं मतलब at an international level, when we are talking about income, आपको यहाँ पे you have to mention about world development reports. क्या है per capita income? US डॉलर 12,056 पर एनम. पर एनम मतलब लाखों में चला गया. हमारे यहाँ तो हज़ारों में भी लोग नहीं कमा पाते हैं इन इंडिया. तो हम, दैट्स वाई वी आर नॉट इन द कैटेगरी ऑफ रिच कंट्री. तो अब जिस कंट्रीज में पर्सनस एनुअल इनकम इज 12,056 पर एनम इज अ रिच कंट्री. आर वी इन दिस कैटेगरी? नो माय डियर चिल्ड्रन, वी आर नॉट इन दिस कैटेगरी. यहाँ पे क्या है 2017 में. इसके बाद पर कैपिटा इनकम जिस कंट्रीज का 955 यूएस डॉलर्स है. यूएस डॉलर्स is considered to be the standard measure of measuring and calculating money at in a very joint manner. Okay, so US dollars 955. Dollar is the recognized measurement for money all over the world. इसलिए हमने यहाँ डॉलर को लिया है. स्पेशली दिस हैज कम फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक. तो वर्ल्ड बैंक ने डॉलर क्राइटेरिया ही फिक्स किया है. यूएस डॉलर 955 से बिलो. अगेन दिस इज़ वेरी हाई. हमारे यहाँ के लोगों को इतना भी नहीं मिल रहा है. लेकिन 955 दे आर अर्निंग, दैट इज़ अ लो इनकम ग्रुप. एंड इंडिया का किस में आता है? इट इज़ कमिंग इन द लो मिडिल क्लास कंट्रीज. क्योंकि हम
कितना है? 1820 US डॉलर पर एनम, क्वाइट लेस। हाँ, 955 का क्राइटेरिया है, लेकिन वी आर स्टैंडिंग एट 1820 पर एनम। ठीक है, मिडिल ईस्ट एंड सर्टन कंट्रीज आर देयर, दे आर जनरली कॉल्ड एज डेवलप्ड कंट्रीज, जहाँ पे द इनकम ऑफ द पीपल इज क्वाइट हाई, दोज कंट्रीज आर ईजिली कॉल्ड एज द डेवलप्ड कंट्रीज। ओके, ये तो एक चीज हो गया डेवलप्ड कंट्रीज का। एवरेज इनकम कैलकुलेट करते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। Average competition, average income is taken for comparison majorly. अब यहाँ पे 2 कंट्रीज का कंपैरिजन दिया हुआ है, आप डेटा देख लो। इन कंट्रीज का एवरेज निकालना है, टोटल करके इसको 5 से डिवाइड कर लो। हाँ, सिटीजन, 5 सिटीजन का इनकम इज गिवन हियर ना, तो आप जब इसको डिवाइड करोगे आपको एवरेज आ जाएगा। तो आर यू लिविंग हैप्पीली इन बोथ दीज कंट्रीज, मतलब सपोज यू आर इन वन ऑफ दीज कंट्रीज, इन दोनों में से किसी कंट्री के पास, किसी कंट्री में अगर आप रह रहे हो, विल यू बी सेटिस्फाइड? ठीक है, अब आप ये कैलकुलेट करके देख लेना। सम ऑफ द पीपल विल वांट टू बी इन कंट्री बी, सम ऑफ देम वांट टू बी इन कंट्री ए। अभी कंट्री ए एंड बी दिया हुआ है, जिसमें कि अगर इस कंट्री में आप कंट्री बी, इफ यू आर इनटू दिस कैटेगरी, बाकी लोगों को 500 रुपीज मिल रहा है एंड यू आर गेटिंग अ 48,000 रुपीज, तो ऑब्वियसली यू विल बी द रिच पर्सन, आप अमीर माने जाएंगे ना। तो प्लीज अंडरस्टैंड, बोथ द कंट्री, जब आप एवरेज निकालेंगे ना तो लगभग इट वुड बी सेम, आइडेंटिकल एवरेज इनकम। कंट्री ए इज प्रिफर्ड बिकॉज इट हैज मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सब लोगों को लगभग इक्वल ही मिल रहा है पैसा। लेकिन कंट्री बी में क्या है, इक्वल पैसा तो दूर, ओनली 1% आउट ऑफ 5 इज अर्निंग वेरी गुड, काफी अच्छा उनका इनकम है। ओके, now what happens, country B में most of the people are poor, only 1% is shown as having very good income. तो average income is used for comparison, it does not tell us how this income is distributed among people. इनकम खाली कैलकुलेट कर लेते हैं, 500 वाले में ही हम ये नहीं कह सकते हैं कि everybody is poor। हाँ, जहाँ पे the citizen are earning $500, लेकिन ऑफ कोर्स दे आर वेरी लेस देन 48,000 bucks. नाउ ये जो क्वेश्चंस है ना चिल्ड्रन, प्लीज अंडरस्टैंड, एवरेज इनकम अगर 3 मार्क्स में आता है तो आपको वो सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। यू हैव टू टॉक अबाउट ऑल दैट इज मैंशन देयर इन दिस बॉक्स। ये थोड़ा सा कंपैरिजन आपको बताना है, आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन। तो ये अगर एवरेज इनकम का कॉन्सेप्ट नहीं बताओगे, यू विल लूज ऑन 3 मार्क्स एंड 3 मार्क्स इज बिग नंबर, प्लीज रिमेंबर। नाउ ये क्वेश्चंस हैं, गिव 3 एग्जाम्पल्स वेयर एन एवरेज इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग सिचुएशंस। 3 एग्जाम्पल्स जहां पे हमने एवरेज यूज किया है, आप ऊपर वाले बॉक्स का एग्जाम्पल दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक एवरेज इनकम इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। एवरेज इनकम, देखो इनकम अल्टीमेटली द बेसिस ऑफ all the comparisons that are there in the world is income bracket. कौन कितना पैसा कमा रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके, तो ये आपको डिटेल में मेंशन करना है। द एवरेज इनकम इज एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट। फॉर दिस पर्पस क्या करते हैं कि एवरेज इनकम का कैलकुलेशन हम प्रेजेंट करते हैं जब कहीं बाहर देना पड़ता है। So we have to see that average income is maintained. Next, yes,
फ्रॉम द टेक्स्ट. अब क्या है पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस. सपोज आपको सेम पैसेज हैज कम फॉलोड बाय दीज क्वेश्चंस, हाउ विल यू डील विथ दिस क्वेश्चंस. ठीक है, तो आपको वो पैसेज अच्छी तरह से पढ़ के याद करके जाना है, सो दैट यू आर डीलिंग विथ ऑल द आंसर्स प्रॉपरली. गॉट इट. नाउ इनकम एंड अदर क्राइटेरिया. क्राइटेरियाज क्या है? व्हाट आर द अदर क्राइटेरियाज? इनकम तो हो ही गया, अदर क्राइटेरियाज में व्हाट आर वी मेंशनिंग? एक तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, यस, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम एटसेट्रा. उसी तरह से वी थिंक ऑफ अ नेशन और अ रीजन, इसमें वी हैव टू कंसिडर इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स. क्या क्या चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं? पर कैपिटा इनकम हरियाणा में 1.62034 टन्स. नो, पर कैपिटा इनकम इन रुपीज इज 1,60,000. ये डेटा थोड़ा सा आप देख लीजिएगा. एंड ये दिस इज फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे. आई मीन दिस इज द गवर्नमेंट डेटा, प्लीज अंडरस्टैंड. दैट्स व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट. तो अगर 3 स्टेट्स का to mention about. Now children, one thing that is important is has to be prepared for 5 marks. क्योंकि अदर क्राइटेरियाज में आप जब भी डिस्कस करोगे आपको तीनों स्टेट्स का डेटा मेंशन करना है. यू हैव टू मेंशन अबाउट द डेटा ऑफ ऑल द 3 स्टेट्स. हरियाणा क्या क्या है? हरियाणा, केरला एंड बिहार. तो इनकम इज देयर, फैसिलिटीज आर देयर. हम किस चीज़ पे बात करें? इनकम तो हमने बात कर लिया, एवरेज इनकम किस तरह कैलकुलेट करना है. नाउ वी विल बी सीइंग व्हाट आर दी अदर फैसिलिटीज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. पहला हम बात करेंगे मॉर्टेलिटी रेट. देन वी विल टॉक अबाउट लिटरेसी रेट. मॉर्टेलिटी रेट मीन्स हाउ मेनी चिल्ड्रन आर बॉर्न. इसके बाद वी विल टॉक अबाउट, मतलब there are 100 criterias on which we can calculate the development. लेकिन यहाँ पे what we are calculating is the income thing. Got it? Income इनका सही होना चाहिए. उसके बेसिस पे हमने डेवलपमेंट को डिफाइन किया है एंड डेवलपमेंट को डिस्क्राइब किया है. Got it? अब 1 मार्कर्स, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, पूरा एक्सप्लेनेशन याद करना है. लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, ऑल दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम 1 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू. छोड़ना मत. गॉट इट? प्लीज गो थ्रू दिस. एंड देन हरियाणा एंड केरला एंड बिहार. हरियाणा, केरला एंड बिहार की जो हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट दी अदर इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज विच आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट. तो ये तो आप याद रख लेना. ऑल ऑफ दीज यू हैव टू प्रिपेयर फॉर 1 मार्क. बार बार बता रही हूँ, छोड़ मत देना. गॉट इट? सो दिस इज व्हाट चिल्ड्रन. नेक्स्ट क्लास में वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक फैसिलिटीज. वी विल बी टॉकिंग अबाउट पब्लिक फैसिलिटीज. ओके चिल्ड्रन, चलो, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू.